बस चुका है ये सर और क्या मांगना, बनना परवर है तू, बस जरा देखना, तेरी मर्जी को पाना मेरी जुस्तजू। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या वो दुनिया जिसमें कोशिश न हो दीन के वास्ते, क्या वो दुनिया जिसमें कोशिश न हो दीन के वास्ते, वास्ते वहाँ के भी कुछ या सब कुछ यहीं के वास्ते। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه النبي الكريم الأمين مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ امام الانبیاء قاسم النعم مالک الارض حضرت رب دیان العرب ولی والی علی علی کاشف الکرب رافع الرتب رحمت للعالمین راحت العاشقین تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ڈر. حضرات محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ڈر. اور ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم ان کے دنیا اور آخرت میں مددگار ہیں. اور حضرات محترم، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حلقہ اصحاب میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتا دوں متقین لوگوں کی کیا نشانی ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی حضور بتائیں. تو آپ نے فرمایا کہ متقین لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے. حضرت ابراہیم بن ادہم آپ وقت کے بادشاہ تھے. ایک رات آپ اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے کہ آپ کے چھت کے اوپر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، دوڑنے کی آواز آئی. تو آپ نے آہٹ محسوس کر کے اٹھے. آپ نے اوپر آواز دے کر کہا کہ کون ہے جو اس وقت کے بادشاہ کی نیند میں خلل پیدا کر رہا ہے؟ تو آواز آئی جناب ہمارے اونٹ گم ہو گئے ہیں، ہم اپنے اونٹ تلاش کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا تم کتنے پاگل ہو، کیا کبھی اونٹ بھی چھتوں پہ چڑھے ہیں؟ تو آواز آئی کہ اگر اونٹ چھت پہ نہیں ملتے تو تم اس نرم اور گرم بستر پہ خدا سے کیسے ملاقات کر سکتے ہو؟ آپ میں لذت آئی ہو گیا. اور صبح دربار لگا ہوا تھا کہ ایک نہایت ہی خوبصورت آدمی اندر داخل ہوا اور آگے پیچھے دیکھنے لگا. اس شخص کا اتنا روب تھا
पाया और वो चलते चलते बादशाह के तख्त के करीब आ गया। अब बादशाह ने उसे कहा, क्या मर्द खुदा, तुम कौन हो और किसकी तलाश में इधर आए हो? तो उस मर्द खुदा ने फरमाया कि मैं इस सराय में ठहरने आया हूं। तो आपने कहा, हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि क्या ये तुम्हें सराय लगता है? तो उस मर्द खुदा ने फरमाया, तुम्हारे से पहले यहाँ पर कौन लोग आबाद थे? कहा, मेरे बाउजाद। और फिर उस मर्द खुदा ने फरमाया कि अब तुम्हारे बाद यहाँ पर कौन से लोग आएंगे? तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि मेरी नस्लें। मर्द खुदा ने कहा कि जहां पर लोग आते हैं जाते हैं, फिर आते हैं जाते हैं, किसी को वहां पर रहना नसीब नहीं होता, तो वो सराय नहीं तो और क्या है? वो शख्स गायब हो गया। अब हजरत इब्राहिम बिन अदहम रात वाले वाकये से परेशान थे। आप बहुत परेशान हो गए, आपका दिल बेचैन हो गया और दिल में अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत घर कर चुकी थी। आप बाहर निकले और फिर दोबारा उस मर्द हक से दोबारा मुलाकात हुई तो नाम पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मेरा नाम खिजर है। और गायब से निदा आई कि इब्राहिम बिन अदहम, मरने से पहले जाग जाओ। तो फिर आपने अपना ताज और महल छोड़ दिया, दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ हो गए। मोहतरम, अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे वो होते हैं जिन्हें देख के अल्लाह याद आ जाता है। शायर लिखता है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरत मोहतरम, हजरत बायजीद बस्तामी के शहर में एक फाहिशा औरत आ गई और उसने बदकारी करना शुरू कर दी। लोग बदकारी की तरफ माइल होते गए। तो हजरत मोहतरम, लोग आपके पास और कहा कि हुजूर, आपके शहर में जहां आप हो वहां पर बदकारी। तो आपने फरमाया कि मैं इसका बंदोबस्त करता हूं। रात को आप उसके दरवाजे के बाहर जाके बैठ गए। उस औरत ने कहा कि आज कोई बदकारी के लिए नहीं आया, लोगों का आना जाना बंद क्यों हो गया है? अब आधी रात गुजर गई तो उसने अपने मुलाजिम को बाहर भेजा कि जाओ देख करो कि लोग आज आ जा क्यों नहीं रहे। जब वो मुलाजिम बाहर गया तो उसने देखा कि बाहर हजरत बायजीद बस्तामी तशरीफ फरमा है। उसने अंदर आके कहा कि बाहर मर्द हक, मर्द खुदा तशरीफ फरमा है, इसी वजह से कोई शख्स नहीं आ रहा, जो आता है उनको देखता है और चला जाता है। तो हज़रत मोहतरम, उस फाहिशा औरत ने मुलाजिम से कहा कि उसे जाकर बोलो कि तुम्हें इतना ही अल्लाह याद आ रहा है तो मेरे दरवाजे पे ना बैठो, क्योंकि ये फाहिशा का दरवाजा है। तुम जाके मस्जिद के दरवाजे पे बैठ के अल्लाह अल्लाह करो, इस दरवाजे से तुम्हारा कोई लेन देन नहीं। उस मुलाजिम ने जाके सारी बात हजरत बायजीद बस्तामी से कह दी। तो आपने फरमाया कि मैं उस औरत से मिलना चाहता हूं। तो मुलाजिम ने कहा कि वो 200 दिरहम से कम किसी से बात भी नहीं करती, वो एक बड़ी औरत है। तो आपने फरमाया मुझे मंजूर है। 200 दिरहम के बाद जब आप उससे मिले तो फरमाया कि आज जो मैं कहूंगा तुम वो करोगी। आपने उसे कहा गुस्ल कर कर आओ, पाक हो कर आओ। वो पाक हो कर आई तो आपने फिर बाजमात नमाज पढ़ाई, नफल पढ़ाए और फिर आपने अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानू की बारगाह में हाथ उठाकर कहा कि अल्लाह, तेरे सामने झुकाना मेरा काम था, अब इसका दिल फेरना तेरा काम है। हजरत मोहतरम हजरत बायजीद बस्तामी वो वली हैं कि उनकी निगाह से फाहिशा औरत वलिया आबदा जाहिदा बन गई। इसीलिए शायर ने लिखा कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरत मोहतरम दाता गंज बख्श अली हजवेरी, ख्वाजा ख्वाजगान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, आपने दाता गंज बख्श अली हजवेरी पर के दरबार पर 40 रोज का चिला काटा और चिला काटने के बाद आपने ये शार लिखे जो आज भी उनके दरबार पर लिखे हुए हैं कि गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना के सारा
पीर कामिल का मिलारा रहनुमा। दादा गंज बख्श अली हजवेरी अपनी झोंपड़ी में बैठे हुए थे कि बाहर से एक हिंदू की बारात गुजरी, तो वो रास्ता भटक गए। तो आपके पास आए कि देखा कि झोपड़ी में कोई फकीर बैठा है, तो उसे कहा कि रास्ता भटक गए हो। फकीर से आकर उन्होंने कहा कि हम रास्ता भटक गए हैं। तो आपने फरमाया कि रास्ता बता दूं कि रास्ता दिखा दूं? तो उन्होंने कहा रास्ता दिखा दे। तो आपको जलाल आ गया, आपने आंखें बंद की तो सामने मदीना आ गया। मोहतरम, वो हिंदू की बारात मदीने में पहुंच गई। जब उन्होंने सरकार का रोजा देखा तो कदमों में गिरकर मुसलमान हो गए। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सरकार गोलड़ा शरीफ पीर मेहर अली शाह, आप एक मर्तबा दो आदमी कहीं जा रहे थे, तो आपने उनसे पूछा कि कहां जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम मदीना जा रहे हैं। तो कहा कि मदीना यहाँ पर तो नहीं। उन्होंने अर्ज की कि हुजूर हम गरीब हैं, हम मदीना तो नहीं जा सकते, पर हम गुजरात के करीब जो मदीना है हम वहां जा रहे हैं। आपने फरमाया कि तुम उस मदीना क्यों नहीं जाते जो जन्नत से भी अफजल है? तो उन्होंने कहा हुजूर गरीब हैं, पैसे नहीं है। तो आपने फरमाया चलो मैं ले चलता हूं। आपने नजर की तो सामने मदीना आ गया। पीर मेहर अली शाह, आप अभी छोटे थे, तालीम के लिए गए तो वहां पर एक बुजुर्ग आए, तो उनके अदब में सारे खड़े हो गए। पीर मेहर अली शाह जो कि अभी बच्चे थे वो बैठे रहे। उस बुजुर्ग को गुस्सा आया तो उसने कहा क्या लड़के मैं कसीदा गौसिया पढ़ूं? तो आपने मुस्कुरा कर फरमाया कि तुम कसीदा गौसिया पढ़ो, मैं कसीदे वाले को बुला के लाता हूं। हज़रात मोहतरम, आप बड़े जलीलुल कदर वली हैं। हज़रत मोहतरम ख्वाजा अब्दुल हकीम, आप जात के धोबी थे। आप दरिया के किनारे कपड़े धोया करते थे, लेकिन लोगों को नहीं पता था कि जिस तरह ये जाहिरी कपड़ों की मैल साफ कर देता है, उस तरह अपनी नजरे फैज से ये दिल की मैल भी साफ कर देता है। लोगों को नहीं पता था। एक मर्तबा वहां से हिंदू की बारात गुजरी, पुल ना देखा वहां पर, तो उन्होंने कहा कि धोबी तुम्हें कितना अरसा हो गया यहाँ पर, तुम पुल ही ना बनवा लेते, तुम पुल क्यों नहीं बनवाते? तो आपने कहा तुमने उस पार जाना है। कहा जी हमने उस पार जाना है। तो आपने दरिया के ऊपर कपड़े बिछा दिए और कहा कि लो गुजर जाओ, रास्ता तैयार है। तो उन्होंने कहा कि हमारे से मजाक क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा मजाक नहीं करता। पास ही एक बैल खड़ा था, उन्होंने बैल की तरफ इशारा किया और बैल से कहा कि तुम तो एक मुसलमान के बैल हो, ये क्या जाने, तुम इनको गुजर के दिखा दो। वो बैल ऊपर से दौड़ता हुआ गुजर गया। वो हिंदू की बारात भी उनके पीछे से गुजर गई और जब देखा कि हम सही सलामत गुजर गए हैं तो वापस आकर आपके कदमों में गिरकर मुसलमान हो गए। इसीलिए तो शायर ने लिखा कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। रज़ात मोहतरम सैयद आजम शाह जो कि बजवाड़ा शरीफ में के बुजुर्ग थे और कुतुबुल अख्तार थे, आपके पास लोगों का हजूम लगा रहता। एक मर्तबा एक सियासी जो कि जिस्मानी मुआलिज था, वो आपके पास आया तो कपड़ों को देखकर कहा कि आप गरीब हैं। तो उसने एक आपको बूटी दी और उसने कहा कि उसको तांबे के साथ लगाओगे गर्म करके तो वो लोया वो तांबे के साथ लगाओगे तो वो सोना बन जाएगा। तो आपने कहा कि इस बूटी को ताक में रख दो। जब कुछ अरसा बाद फिर वो आया तो उसने देखा कि आप वैसे के वैसे ही बैठे हैं। आप उठकर गए और फिर वापस आए, कज़ाए हाजत के लिए गए और फिर वापस आकर जब बैठे तो उसने कहा कि हुजूर जो मैंने आपको बूटी दी थी, अगर आप उसका इस्तेमाल करते तो अभी आप बादशाह बन गए होते।
तो आपने मिट्टी का ठेला उठाकर जमीन पे मारा तो सारी की सारी जमीन सोने की बन गई। तो आपने उससे फरमाया कि अगर हमें दौलत चाहिए होती तो तुम्हारी बूटी के बगैर भी हम ले सकते थे, मगर जिन्हें यार का आस्ताना मिले उनके लिए, जिनको यार के दर की गदाई मिले उनको दौलत की जरूरत ही नहीं होती। इसलिए तो शायर ने लिखा, जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे दो जहां का खजाना मिला है, भला बाग़ जन्नत का क्या करेगा जिसे यार का आस्ताना मिला है। हज़रात मोहतरम, वो जिस्मानी मुआलिज 87 कदमों में गिरकर मुसलमान हो गया, उसने कलमा पढ़ लिया। तो हज़रात मोहतरम, इसीलिए तो शायर ने लिखा कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।